एक्शन अगर लेना हो तो लेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छी चीज़ें होंगी इससे। Priya, you just said you're very hopeful about the censor board. लेकिन आपने जैसे बोला प्रोड्यूसर्स बहुत खुश हैं या जो भी आपने बोला अभी, लेकिन सुदीप मिश्रा personally feels that Parag Dhanali should not be the chief of censor. What is your reaction? You know, I am not senior enough to make comments in that nature. I have known Pailaj Nilani ji for a very long time. There may be certain observations and certain views that he has pronounced that we may not be in agreement with, and I'm pretty certain that the seniors in the industry will collectively put their opinion forward. And I'm very sure, given that we are a democratic uh, organization and setup, there will be the right steps taken to ensure that everybody is happy. एक सवाल मेरा होगा। आप एक मुंबईकर हैं, ट्रैवल करती हैं हाईवेज पर कई बार। सचिन ने हाल ही में, सचिन तेंदुलकर ने टोल नाके को लेकर वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, जैसे गेट्स कम है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, इन सब चीज़ों को लेकर चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था और चीफ मिनिस्टर ने उस पर रिप्लाई किया है, कहा है कि हाँ हम सचिन की मांग को पूरी करेंगे। क्या रिएक्शन आपका होगा एज ए मुंबईकर, आप भी ट्रैवल करते हैं? I think it's a wonderful thing जब people in public life and especially icons like Sachin Tendulkar take active interest and participation in social good, and I think it's a wonderful thing that he wrote this letter to the Chief Minister. It shows that he is deeply interested and involved with social good, something that impacts all of us. And अगर ये उनकी मांग पूरी हो जाए तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, and I think it will give impetus to more people to get more involved. Thank you. Hopefully we will use the IFA platform this year to make some very interesting announcements. Thank you. Thank you. अच्छा लग रहा है. It's a sweet 16 IFA year, and that too in Malaysia. So I'm looking forward to going, because last year I was nominated for Grand Masti, and I'm fortunate enough that I was at least nominated. Getting an award or not getting an award is not the point. The point is at least you get nominated, because IFA is not something which is small. It's like a very, very reputed form of medium, and you go and your films get acknowledged on the global platform. And this year it's happening in Malaysia, and it's the 16th year, so it's going to be more youth, more fresh, more young, and it's going to be a lot of fun, and we're going to enjoy a lot of tourism. अवार्ड एक्टर के लिए कितना मायने रखता है आपकी लाइफ में? मिस्टर शाहरुख खान, उनको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, आज तक अवार्ड्स ही अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ लाइक अ लिटिल चाइल्ड बेबी, लाइक whenever he gets his award he feels so good. So आप देख सकते हैं जिनको मिलता है उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है. आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एंड ऑफ द डे आपका काम एक्नॉलेज होता है, और आईफा जैसे मीडियम में एक्नॉलेज होना बहुत ही बड़ी बात है. आई होप मेरी भी 5 फिल्में इस साल रिलीज़ हो रही हैं. आई होप कुछ ना कुछ नेक्स्ट ईयर ऐसा हो जाए कि कुछ नॉमिनेट हो जाए कि मैं भी एक अवार्ड लेके घर जाऊँ मुस्कुराते हुए. बहुत ही अच्छा लगता है. एज अ चाइल्ड व्हेन यू गो टू स्कूल यू गेट you participate in sports or you come first in your class, you get a certificate or a medal, so that is also an honor. And if you get an award, it's like the moment for you and your family. So looking खान जो है कल 50 साल पूरे कर लेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? really like he looks so young. 50, I like really doubt. I think he's just getting young, and it's not number, like age is just a number, and I don't think so it's really to do with the age, like 50 or 60 or 40, it's just the numbers.
and I think it's just getting better with the age. Don't you think so? It's like a wine, like the older the better. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. Bye. Thanks. First year at I5 Award Show. Thank you. Yes, Congratulations. first one. Thank you. How is it feeling? Well, like you said, this is my first time at IFA this year, and I'm really happy and honored that I'm part of IFA this year. अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए मेरे लिए well, for me, it is important to an extent where it does motivate you to do better. So to that extent, yeah. But yeah, I get at the end of the day, for me, appreciation from it matters the most. So yes. Okay, अक्षरा हम यहाँ फिल्म्स की बात कर रहे हैं सेंसर बोर्ड को लेके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हमने ओवर द टाइम देखी हैं अभी रिसेंटली डायरेक्टर सुधीर मिश्रा was a very renowned director of Bollywood उन्होंने कमेंट किया है कि Bilaz Manali was another renowned director should not be the chief of censor board. So with all this mess आपका क्या रिएक्शन है to this? See, that's वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है. So it's not my place to say what is right and who should be heading the censor board. If you feel whoever's dedicated, whoever is in charge for like deciding what should go and what should not go, well, they've been chosen for a reason, and I guess it's not my place to really comment on that. So yeah. Akshara, tomorrow Amir is turning 50 and Yes. you are also working in Dangal. See, it would be a complete honor to work with Mr. Amir Khan. I'm a big fan of his as well, and but I haven't auditioned for Dangal as such, so I don't think I'd be part of it if I've not auditioned for Dangal. So yes. And Wishes Happy birthday, Amir sir. Hope you have a wonderful year and hope you achieve whatever you wish for. अक्षरा अक्सर आप ट्रैवल करती होंगी टोल नाके को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स होती है कई बार ट्रैफिक जाम होता है बहुत देर तक वेट करना पड़ता है एम्बुलेंस को भी वेट करना पड़ता है और यही सारी चीज़ों को प्रॉब्लम्स को सचिन तेंदुलकर ने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा था यही सारी प्रॉब्लम्स के साथ अब चीफ मिनिस्टर ने इस पर रिप्लाई किया है और कहा है कि वो डिमांड्स हम पूरी करेंगे तो क्या रिएक्शन आपका होगा एज अ If they say they're going to do it, then I feel they will do it. So yeah, that's my feel. If they said they are going to act on it, they will. So पर इस प्रॉब्लम्स को लेकर क्या कहेंगे कि आपको भी problems, though it is a problem, but now since it's being worked on, so I guess it'll be resolved soon. Yeah. पर सचिन तेंदुलकर बहुत ही रिजर्व किस्म के पर्सन है वो Yeah, जल्दी I पता mean, नहीं करते बट yeah. See, he's responding as a citizen, so he's writing as a citizen, so he wrote from a citizen's point of view. थैंक्स अ लॉट थैंक यू वेरी मच There are rumors that Shruti Hassan is going to get married soon. So how true are these rumors? Really? Yeah. Really? Wow. Okay, I didn't know that. Wow. No, No. I don't know about that. Wow. अक्षर अगर आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल आपके बिजी शेड्यूल से निकाल के आपको 24 आवर्स स्पेंड करने हो तो आप किन के साथ करेंगे क्या अचीव करना चाहेंगे वो 24 घंटों में I'd spend it with family and definitely would do something productive and have lots of fun with my family, spend quality time with them and my friends. Yeah. बट व्हिच बिग थिंग वुड यू लाइक टू अचीव Good memories. I guess yeah. Good memories to take along with me. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स Not as yet. Nothing is confirmed as yet. अभी बात चल रही है तो अभी के लिए कुछ confirm नहीं हुआ है. थैंक यू सो मच Thank you. थैंक
स्टार्ट तो करते ना स्टार्ट बार रोलिंग। आयुष्मान, सबसे पहले तो आइफा ने 16 साल पूरे कर लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी मेमोरी जुड़ी है आइफा के साथ आपकी? आई थिंक आइफा को मैं बचपन से देख रहा हूँ और 16 साल पहले मैं स्कूल में था और तब से आइफा फॉलो कर रहा हूँ और पहली बार शायद इंडियन अवार्ड कोई आउटसाइड इंडिया गया था और मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इंडियन एक्टर्स को देखकर. सो आई थिंक आइफा इज़ वेरी स्पेशल फॉर पीपल स्पेशली हु स्टे अब्रॉड, NRIs के लिए. हाँ हाँ, सबसे अच्छी बात ये कि मलेशिया में हो रहा है, इट्स नेक्स्ट डोर. उसका फ़ायदा ये होता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो जेट लैग नहीं होते, मतलब आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं जब भी वहाँ पर लैंड करते हैं. तो 2-3 दिन, नहीं तो अगर आप कनाडा कर रहे हैं, US कर रहे हैं, 3-4 दिन तो आपको जेट लैग उतारने में लग जाते हैं. बट आई थिंक ये अच्छा होगा एक्टर्स के लिए, प्रोडक्शन वालों के लिए कि पास में ही हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड. लास्ट ईयर जो इतनी अच्छी फिल्में आई बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहा लास्ट ईयर, तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? मेरी लास्ट ईयर की 3 फेवरेट फिल्में हैं, इनफैक्ट 4 फेवरेट फिल्में हैं. एक है PK, क्वीन, आंखों देखी और हैदर. आई थिंक इनको अवार्ड मिलने चाहिए. आयुष्मान, आपकी लाइफ में आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज को देते हैं और अगर आपके पास आखिरी 24 घंटे बचे तो आप क्या करेंगे? यार मैं अपनी फैमिली को सबसे इम्पोर्टेंस देता हूँ और तो क्या होगा. कौन सी चीज आप अचीव करना चाहेंगे? आई थिंक बस हैप्पीनेस अचीव करना चाहता हूँ यार. ये बहुत इंटेंजिबल सी चीज़ होती है. आई थिंक द पर्सनल पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बाकी कुछ मटीरियलिस्टिक मैं सोच के नहीं आऊँ कि मैं ये खरीदूंगा या फिर ये गाड़ी ले लूंगा, एक बंगला ले लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक यू शुड बी जस्ट पर्सनली हैप्पी एंड हैप्पी विद योर ओन सेल्फ, दैट्स इट. आयुष्मान, वी आर सेलिब्रेटिंग फिल्म्स विद आइफा, लेकिन सेंसर बोर्ड को लेकर कहीं ना कहीं काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है. रिसेंटली डायरेक्टर सुदीप मिश्रा has commented that पहलाज मिलानी को चीफ नहीं होना चाहिए सेंसर बोर्ड का, बहुत पॉलिटिकल ड्रिवन है. इस बात पे आपका क्या रिएक्शन? आई थिंक एक तरह से हमारी सोसाइटी एक तरफ बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड कई बार एग्रेसिव हो जाता है. हमारी फिल्म दमना के एशिया में काफ़ी ज़्यादा कट्स हुए थे, इतने ज़्यादा भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था वैसे. मतलब 1-2 वर्ड्स जैसे हरामखोर को कठोर कर दिया था और हरामी पने को हमने छिछोरापन कर दिया था. तो आई थिंक ये हमारी फिल्म को इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो बाकी जो एडल्ट कंटेंट वाली फिल्में होती हैं उनको इफेक्ट पड़ सकता है. पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप A रेट दे ही चुके हो तो फिर सेंसर करने की क्या ज़रूरत है. ऑलरेडी 18 साल से ऊपर जो लोग हैं वो देखने जाएंगे. सो आई थिंक वो जितना रियल हो सके उतना सिनेमा के लिए अच्छा है और उतना उनके कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है. Ayushman, Aamir Khan is turning 50 tomorrow, so wishes for him. आई एम अ ह्यूज आमिर खान फैन. इनफैक्ट जब से क़यामत तक मैंने देखी थी तब से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. और मेरी फेवरेट फिल्म जो जीता वही सिकंदर है. आई थिंक वो फिल्म जो थी अहेड ऑफ इट्स टाइम्स थी. सो आई वुड लव टू विश हिम वेरी हैप्पी बर्थडे. आई एम अ ह्यूज फैन सर. सेलिब्रिटीज के लिए अक्सर प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक. टोल को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई बार ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो टोल पर काफी वक्त देना पड़ता है. हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने एक लेटर लिखा था यही सारी कंप्लेंट्स के साथ CM को, और CM ने उस पर रिप्लाई किया है और कहा है कि वो कोशिश करेंगे इन डिमांड्स को कंप्लीट करने में. क्या कहेंगे? क्या डिमांड्स है, मतलब मुझे समझ नहीं आया. जैसे टोल पर गेट्स बहुत कम है, हाँ. तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, गाड़ी को लाइन से खड़ी रहनी पड़ती है. करेक्ट. वहाँ पर गंदगी बहुत होती है, उसे हटाना चाहिए. आई थिंक सिर्फ टोल्स को लेके नहीं, ओवरऑल सारी रोड्स पे गंदगी बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली मुंबई जो है वो इतने सारे लोगों के लिए बनी भी नहीं थी शायद. एक ही रोड हमारी नॉर्थ से साउथ तक जाती है, तो हम क्या करेंगे. एक सी लिंक है और बाकी एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है. तो एक वेस्टर्न एक्सप्रेस वाला एक लिंक रोड है, उस पर पूरी मुंबई सर्वाइव करती है. तो आई थिंक हमारे लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हमारी सिटी में, और जितना हमारी सिटी एक्सपैंड करेगी उतना ज़्यादा अच्छा है. थाने साइड या फिर जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, और मुझे लगता है इंडस्ट्री को भी और एक्सपैंड करना चाहिए, सिर्फ फिल्म सिटी तक सीमित नहीं रहना चाहिए. हमारे ऑफिस सारे अंधेरी में हैं. कुछ ऑफिस अगर हमारे बाहर चले जाएंगे, अगर थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो बेटर रहेगा. इनफैक्ट आई थिंक एक हेलीकॉप्टर हर एक को ले लेना चाहिए. वो एक ऑप्शन. सचिन तेंदुलकर को बहुत ही रिजर्व पर्सन माना जाता है, वो जल्दी किसी चीज के लिए रिएक्ट भी नहीं करते, पर ऐसे में उनका CM को लेटर लिखना, क्या लगता है आपको कि वो मतलब एज अ सिटीजन उन्होंने एक कदम बढ़ाया है, तो इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? आई थिंक वो एक ओपिनियन लीडर है. सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है, और हर कोई उनको लुक अप टू करता है. और जो वो कहते हैं सब सीरियसली मानते हैं. तभी CM साहब ने बहुत इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया. अगर आम आदमी कोई करता तो शायद ना इतना रिप्लाई होता. बट इट्स ग्रेट दैट ही इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सोचते हुए वो टोल के ऊपर कमेंट कर रहे हैं या फिर जो शहर की गंदगी है उस पर कमेंट कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम हिज साइड.
आयुष्मान जो है दम लगा के हमेशा को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कोई आप कर रहे हैं तो यार अब मेरी घर वापसी हो रही है, इनफैक्ट मैं सुजीत सरकार के पास वापस जा रहा हूँ तो मतलब वो उनके साथ एक फिल्म करूँगा बहुत जल्द, आगरा का डाबरा शायद शूट होगी, सर्दियों में शूट होगी, सो दैट्स द ओनली प्रोजेक्ट आई हैव। जॉन ने कहा था कि वो भी आपके साथ एक फिल्म, वही फिल्म है मेरी, तो वही सुजीत सरकार जॉन अब्राहम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। या थैंक यू सो मच, थैंक्स, बाय बाय। थैंक्स यार। Hi, good, how are you? Hi. With IFA completed 16 years. Yeah, I feel very close to IFA because I think I'm as old as IFA in the industry. I started in 2001 and I think the first IFA was 2001 or 2000 or 2001, one of the two. So I've started my career with IFA and I've been to most of the IFA awards. And Wizcraft, as always, they've always been very hospitable. The IFA team has been very hospitable, and it's a very fun award function where you don't get too hyper about who's winning, who's losing. It's more about being with the industry, connecting with your fans abroad, and just having a good time. Tushar, आप as you किस फिल्म को नॉमिनेट करना चाहते हैं? I think deservedly would be Queen, PK. These are my two favorite films from last year. तुषार, हम यहाँ पे आईफा में वी आर सेलिब्रेटिंग फिल्म्स इन इंडियन सिनेमा अब्रॉड, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन सेंसर बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है पिछले 2-3 महीने से। रिसेंटली सुधीर मिश्रा, अ वेरी रिनाउंड डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड, हैज कमेंटेड दैट पहलाज निलानी जी को चीफ नहीं होना चाहिए सेंसर बोर्ड का। आपका क्या रिएक्शन है? I don't want to comment on this because मैं अभी 2 महीने की शूटिंग करके आया हूँ, तो बहुत सारा जो हुआ है अभी मतलब सेंसर बोर्ड को लेकर, आई एम जस्ट गेटिंग फेमिलियर विद दैट, बट आई डू फील कि बहुत कन्फ्यूजन है सेंसर बोर्ड में। इट्स नॉट क्लियर एज टू क्या पास करना चाहिए क्या नहीं, एंड आई थिंक 2015 में आई थिंक वी नीड टू रियली गेट आवर एक्ट टुगेदर एज फार एज सेंसरशिप इज कंसर्न। तो वो भी मतलब सॉर्ट आउट हो रही है चीज़ें, अगर मतलब कन्फ्यूजन है अभी मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। सो इट्स अ गुड ट्रेंड, इट्स गुड टू हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, गुड टू हैव दिस डिस्कशन सो दैट वी इवेंचुअली नो वेयर वी आर गोइंग। Tushar, tomorrow Amir is turning 50, so wishes for him. Of course, I mean, I think he's one actor I think who's broken all records as far as not just in box office, as far as not looking his age, because he definitely doesn't look 50. He's played a college boy 5 years back. So here's wishing Amir Khan. It could be a 5th or a 50th birthday. I think he can play both characters really well. So you can remove the 0 if you want. तुषार, सेलिब्रिटीज के लिए ही और आम पब्लिक के लिए भी सबसे ज्यादा मुंबई में प्रॉब्लम होती है वो है ट्रैफिक, टोल्स को लेकर। तो टोल को लेकर जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जैसे गेट बहुत कम है और एम्बुलेंस को भी प्रॉपर जगह नहीं मिलती जाने के लिए, इस पर सचिन तेंदुलकर ने एक लेटर लिखा था सीएम को कि इस तरह की डिमांड्स है मेरी, इसे पूरी करना चाहिए आपको। उन्होंने कहा है, तो आई थिंक डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी। एनीवे आई फील द गवर्नमेंट नाउ इज डूइंग अ lot of projects have been passed, lots of new highways, lots of new infrastructural projects have begun or are going to begin. There's going to be more land acquisition. So I think एक small मुद्दा है जो I think sort out हो सकता है, but I think there are bigger issues and bigger problems that are on their way to being solved. तुषार, पर बहुत ही खुशी की बात यह है कि सीएम ने इस पर तुरंत रिप्लाई भी किया और कहा कि हाँ वो ये करेंगे क्योंकि सचिन ने कहा है। Yes, I believe our CM is very responsible, very responsive, and he's very young in his approach. बहुत modern, forward looking है, बहुत prompt है, बहुत quick है। तो you're giving me the answer to my question. It's being done. तुषार, सचिन तेंदुलकर बहुत ही रिजर्व किस्म के I don't want to comment on anybody personally. Okay, Tushar, third installment of Kya Super Cool Hai Hum. I'm sure you're all set and excited for that. Apart from that, which films are you doing? Well, there's Masti Zade and then there's Kya Cool Hai Hum 3. Yeah, these are the two films that right now are going to release this year. तुषार, अगर आपकी लाइफ में कुछ अगर आपके आखिरी 24 घंटे होंगे तो आप क्या करना चाहेंगे उस टाइम में? आई थिंक आखिरी 24 घंटे होंगे लाइफ में तो क्या करना चाहूँगा? हाँ, क्या अचीव करना चाहेंगे? Maybe probably just eat my heart out. जो खाना है खा लूँगा and जो पीना है पी लूँगा. Probably I'll just what do I do last 24 घंटे में? I think I'll spend time with family. I'll and party. That's it. युवा लोग भी आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, उनके बारे में क्या कहेंगे? हालिया हो गया, आप लोग उनके बारे में ही लिखते रहते हो, आप इतना लिखते हो उनके बारे में, इतना छापते हो उनके बारे में, मैं क्या कहूँ, आपने ही कह दिया। आपको भी करने देगा सर, एक स्टेप थोड़ा क्लोज में
ढूंढ रही थी कब से, आई अभी आई करने। आईफा ने 16 साल पूरे कर लिए, आपकी जी। आईफा के साथ जो आप अपने साथ शेयर करना चाहिए। 16 बरस की इस बाली उम्र को सलाम सबसे पहले। आई थिंक इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी कि आईफा ने 16 साल कंप्लीट कर लिए। 2000 में शुरू हुए थे आईफा, और पिछले जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से आईफा अटेंड कर रहा हूँ, आईफा होस्ट किया है। सो मेरा ये जो रिश्ता है आईफा के साथ ये बहुत पुराना है, एंड इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी कि आईफा हर साल और बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड दिस टाइम टू। सर इस बार मलेशिया में हुआ जी, क्या है सवाल, क्या है? आप सवाल पूछने की जानकारी दे रहे हो? जो है काफी अच्छी फिल्में आई, आपकी लाइफ हारी आई, और जी, अनफॉर्चुनेटली आईफा में नॉमिनेटेड नहीं है वो फिल्म। यस सर। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है लास्ट ईयर में? मेरी फेवरेट फिल्म जो लास्ट ईयर रिलीज हुई, नहीं ऑफ कोर्स एक विलन, बिकॉज उसमें मैं था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एक विलन आई थिंक क्वीन, आई रियली लाइक क्वीन। Ritesh, with IFA we celebrate cinema and films abroad, but कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड जो अपने इंडिया का है वो काफी टाइम से कंट्रोवर्सीज में है, 3-4 महीने हो गए। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा has commented कि पलाश निलानी जी जो सेंसर बोर्ड के चीफ नहीं होना चाहिए उनको, इस बारे में व्हाट्स I don't know, I can't comment on what Sudhir ji has said. I think each to his own, but I truly believe कि हमारे यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट देते हैं वो उसका एक तरीका होना चाहिए। यू कांट सेंसर थिंग्स व्हाट अडल्ट शुड वॉच और नॉट वॉच। हाँ, अगर कुछ चीज़ें ऑफेंसिव है इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई लोग ऑफेंड हो रहे हो तो आई एम श्योर दैट कैन बी सॉर्टेड आउट, बट इट कांट बी अ डिक्टेट कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। आई थिंक one doesn't stand for that. Ritesh, tomorrow Amir Khan is turning 50, so wishes for him. Yeah, happy birthday Amir. रितेश, सेलिब्रिटीज के लिए या आम पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक। इन दिनों टोल को लेकर बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, जिसपे सचिन तेंदुलकर ने एक लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को क्योंकि पेपर में जो सब बिल्कुल, मैं एक्चुअली आई इसलिए हूँ थोड़े वक्त के लिए, मैं सीधा शूट से आ रही हूँ, तो आई काइंड ऑफ रैप्ड अप माई शूट क्विकली बिकॉज आई हैव टू कम एंड विश हिम, और ये बर्थडे बहुत खास